Okay, so today we are going to talk about the second last topic of grammar. Generally, in grammar, we learn about uh, modal verbs, conjunctions, active, passive, and the combinations of gerund and infinitives. We know the tenses, so we know the making of other tenses and all. So we don't discuss here in this, but we generally discuss gerunds and infinitive because it is one of the sentence formation related to the tense actually. But the good thing is that here we are going to use in gerunds and infinitives, gerunds, and we can also say participle and and infinitives. Okay, so gerunds and participle and infinitive, basically they are the part of um, gerund and participle. So let me tell you what is gerund. Non-finite verbs के types है ना? Huh? These are the types of non-finite verbs. Non-finite verbs. They are the part of non-finite. We have finites like infinitives and non-finite. So gerund and participle is there. Okay. So gerund is very much used because gerund is basically verb ing form as noun. Okay. And participle verb ing form as an adjective, or we can also say as a verb. So हमने वो जो continuous tense पढ़ते हैं ना, continuous tense, there we use that gerund means ing form as a participle or as an adjective, और जब हम इसे subject या object की जगह पे यूज करते हैं ना तो it becomes gerund. इसको लोग gerund कहते हैं. The word is gerund. ठीक है. Infinitives पता है क्या होते हैं? कुछ नहीं, verb की first form और किसके साथ? टू के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू. ठीक है. कभी कभी ये कुछ लोगों के साथ में ओनली फर्स्ट फॉर्म भी होती है. सुना होगा आपने, मैंने भी बताया है. जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसको हम कहते हैं विदाउट टू, कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव is also known as फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू. फर्स्ट फॉर्म तो है, टू नहीं लगता, लेकिन तो ये हम मॉडल्स में यूज करते हैं जनरली. नाउ व्हाई वी यूज इट, व्हाई वी डू दिस? इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रामर बट इन स्पोकन आल्सो इट इज वेरी मच यूज्ड, है ना. हम सेंटेंसेस को, लॉन्ग सेंटेंसेस को बनाने के लिए इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं. द कॉमनली यूज्ड इन्फिनिटिव्स आर want to. पहले इन्फिनिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं. We also know like to, right? We know love to. वो ऐसी verbs जिनके बाद में हम to लगाते हैं, then we have to connect a verb. We have to connect another verb. ठीक है. In the same way we know some other verbs as we studied. We know need to. We know this. Dare to. We know all of these. They are basically the verbs with infinitive. इनके बाद ये already अपने साथ क्या लेकर आए हैं? They have come with to with them. With other verbs, कुछ ऐसी verbs होती हैं जिसमें हम to नहीं लगाते, तो direct अगर verb लगाते हैं तो ing लगाते हैं. वो हम next section में पढ़ेंगे. That is called gerund. तो infinitive को हम एक तो ये simple तरीके से use करते हैं. Like we use it in simple way. ठीक है. जैसे I want to say, I like to play, I need to go, he dares to perform. These are many sentences like this. I love to have coffee.
These are the common infinitives which we use. ठीक है, ये तो वो कॉमन है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इनके स्पेसिफिकली मेरे पास में कुछ ऐसे जॉइंट्स भी हैं which we should understand कि हम इन्हें कैसे यूज करेंगे. अब इन्फिनिटिव्स के अंदर हम लोग जनरली 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म को ही समझते हैं. इसमें कुछ हम कॉमनली यूज सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे हमको दो बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना, हमने बोले दो बड़े बड़े सेंटेंस, ऑल दोज बिग लॉन्ग सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड. हमने बोला I want to purchase a house. I want to live in my own house. ठीक है, अब इसको आप चाहो तो सेंटेंस को बिना कोई दूसरा कंजंक्शन लगाए आप टू के साथ भी ऐड कर सकते हो इन्फिनिटिव के साथ में. कैन यू ऐड दैट? कोशिश करेंगे एक बार. Let me do that. I want to purchase a house to live in my own house. Isn't it simple to make sentence such a lengthy sentence? मतलब हमने to को कभी conjunction की तरह नहीं देखा है, क्योंकि वो कंजंक्शन नहीं है, बट इट इज बेसिकली अ इंफिनिटिव. तो want to 2 प्लस परचेस तो इंफिनिटिव है ही, बट हमने 2 प्लस लिव को भी कनेक्ट किया है सेंटेंस के साथ में. राइट? इज इट राइट? यस मैम. राइट. चलो एक और सेंटेंस लेते हैं. लेट्स टेक अनदर सेंटेंस. एग्जांपल नंबर 2 इज देयर. We can make some sentences. ये तो मैं simple examples आपको दे रही हूँ so that you can understand कि हाँ भाई इस तरह से use हो जाएगा ये. ठीक है? Let me take one more example here. He advised me. He advised to visit a doctor. है ना? He advised me एक हो गया. He advised to visit a doctor. तो पहले तो मैंने ये बताया कि उसने मुझे एडवाइस दिया, और क्या एडवाइस दिया वो भी हो गया. ठीक है? Now can you tell me that इसको ऐड कैसे करेंगे? With to we can add. He advised me to visit a doctor. Very good. He advised me to visit a doctor. ये हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं. करेक्ट? वी कैन ऑल्सो से इट डायरेक्टली. है ना? अब जैसे डायरेक्टली कैसे बनाते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ. जब हमें कहना होता है आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल. I want you to accept this proposal. ये इन्फिनिटिव का एक और यूज है जिसमें want का to जो है वो वर्ब के पास चला जाता है और प्रोनाउन आगे आ जाता है. This is one of the connections which we use in infinitives. इसमें होता क्या है कि हमें फिर एक ही इन्फिनिटिव यूज करना होता है. We don't have to use I want to you. है ना? वो सेंटेंस में जनरली वहां पे सेट नहीं होगा, तो want और to के बीच में एक प्रोनाउन सेट होगा और उसके बाद में आप दूसरा इन्फिनिटिव to के साथ में ऐड कर सकते हैं. यही चीज जो है like के साथ भी हो सकती है. He likes her to dance. He likes her to dance. He likes her to dance. उसे पसंद है उसका डांस करना. उसे डांस करते हुए
देखना या उसका डांस करना उसे पसंद है. He likes her to dance. I like my students to flourish. Flourish, you understand? To do खिलना, development, growth, flourish. खिलना जो उसको हाँ, खिलना. हाँ, खिलना. खिलने से अच्छा Actually, वर्ड है टू डू ग्रोथ, है ना? टू डू डेवलप, नाम रोशन करना, तब कुछ आगे करना, लाइक दैट. आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू फ्लरिश. मैंने लाइक और वो, आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू फ्लरिश, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू फ्लरिश, आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू फ्लरिश. इतने सारे सेंटेंसेस को एक साथ कर दिया. आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू फ्लरिश. यहाँ पर भी वो टू फ्लरिश जो है वो इन्फिनिटिव ही है यहाँ पर. ठीक है. कुछ और सेंटेंसेस हम जब कनेक्ट करते हैं, वी कैन कनेक्ट इन दिस वे एंड दैट वे. ये तो इन्फिनिटिव का छोटा सेक्शन है. वन टाइप से यूज होते हैं जनरली, या तो ऐड करने के लिए यूज होते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को बार बार यूज, टू के यूसेज को रिपीट ना करने के लिए, है ना, या फिर ये डायरेक्ट यूज हो जाते हैं लाइक वाले. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज दैट प्रोनाउन को बीच में रखकर टू मेक somebody's और टू want something from somebody, तो ये भी हो सकता है. टू लाइक somebody to do something, ये भी हो सकता है. देखो यहाँ पर भी वो अटैचमेंट में फॉर्मूला में भी टू आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं जेरेंड्स की. जेरेंड बेसिकली हमें समझना होता है. अगर हम जेरेंड की बात करें तो याद रखना है, जब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हो. नाउन का काम यह होता है या तो वो सब्जेक्ट की जगह लगती है या ऑब्जेक्ट की जगह पर. तो सेंटेंस ऐसा हो सकता है, स्विमिंग इज माय हॉबी. यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट पता है क्या है? स्विमिंग, है ना. अब वो वहां वर्ब एक्शन का काम नहीं कर रही है, वो एक्टिविटी का नाम बताने का काम कर रही है. वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, वर्किंग एज अ नाउन. स्विमिंग मेरी हॉबी है. ठीक है. अब बात करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माय हॉबी इज स्विमिंग. अभी भी ये क्या है? स्टिल दिस इज अ, बेसिकली माय हॉबी इज स्विमिंग. यहाँ पर भी माय हॉबी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है जल्दी बताइए? स्विमिंग. ऑब्जेक्ट की जगह पर तो सी, वहां पे वर्ब ऑलरेडी इज है. माय हॉबी इज स्विमिंग मतलब मुझे वो तैराकी पसंद है. इट इज अगेन अ नाउन. ऑब्जेक्ट की जगह पे काम कर रही है, वर्ब का काम, कोई एक्शन बताने का काम नहीं कर रही है, जबकि एक्शन का नाम बताने का काम कर रही है. इट इज वन ऑफ देम. ठीक है. अच्छा, अगर मैं बोलूं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग. अब बताइए यहाँ पर स्विमिंग क्या है? इफ यू से आई एम स्विमिंग, टेल मी व्हाट verb है इज sir. एक्शन verb है मैम. verb अब है. ये वर्ब है. वर्ब है तो ये है पार्टिसिपल. क्या है ये? Yes ma'am. पार्टिसिपल. पार्टिसिपल का मतलब ही होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एक्शन की तरह काम कर रही हो. वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एक्शन की तरह काम कर रही हो, और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है वो जेरेंड होती है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, है ना. अगर मैंने बोला ये हमारा क्या हुआ, इसको कहेंगे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल. अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं उसको? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहते हैं. ठीक है. एक और और V3 को past participle मैम. बेटा वो थर्ड फॉर्म को कहते हैं. हाँ हाँ, past participle चीज. थर्ड फॉर्म को कहते हैं. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब है आईएनजी फॉर्म, लेकिन लगती प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में है. नाम उसका अगर देखा जाए तो यही है. ठीक है. ओके, क्लियर है. चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं. अगर मैंने कहा, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से the baby is crying. The baby is crying. इसको बताओ. The baby is crying.
यहाँ पर ये Present जेरेंड है participle. कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? Present प्रेजेंट participle. पार्टिसिपल। बिल्कुल सही, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं क्राइंग बेबी इज लाइंग ऑन द बेड, यहां पर क्राइंग क्या है? Gerund. नहीं, जेरेंड कैसे है? नाउन की तरह काम कर रहे हैं क्या? नाउन तो बेबी है, नाउन तो बेबी है। एडजेक्टिव। राइट, इट इज एन Adjective. एडजेक्टिव। ये क्या है? यहाँ पर जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। वर्ब की फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म, वो कैसे काम कर रही है? एडजेक्टिव की तरह। कहने के लिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, बट इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं द मूवी इज इंटरेस्टिंग, तो अब बताओ यहाँ पर क्या ये कौन सा फॉर्म है? क्या ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है और जेरेंड है? टेल मी। द मूवी इज इंटरेस्टिंग। एडजेक्टिव। Very good. Adjective. It is an adjective. Generally we add the sentence with this also, है ना? अच्छा एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अगर किसी ने बोला this is surprising for me, this is surprising for me, what is here? This is यहाँ पर ये gerund है, participle है कि adjective है? adjective, ma'am. Right, it is adjective. It is adjective. एक और बताना, he is surprising me all the time. Now tell me. यहाँ पे ये पार्टिसिपल है मैम। He is surprising, participle मतलब verb, यहाँ पे ये action है कि adjective है? क्योंकि gerund तो नहीं है। एडजेक्टिव ही है। नहीं, he नहीं, is ma'am. surprising me। पार्टिसिपल। हाँ, ऐसा होता ना, he is surprising for मैम me, वो मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पर तो सरप्राइजिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? व्हाट इज दिस हियर? आप बताइए, सेंटेंस बताइए। ही इज सरप्राइजिंग फॉर मी, ही इज सरप्राइजिंग मी, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है? इट्स लाइक वर्ब। इट इज लाइक He's वर्ब, surprising. क्योंकि अगर बोलना है ही इज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल द टाइम, मतलब मेरे लिए तो हमेशा ही वह आश्चर्यजनक है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। एम आई राइट? क्योंकि वहां पे Right, ma'am. फॉर मी अलग है, ही इज सरप्राइजिंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है। ऊपर वाले में ऐसा कोई मीनिंग आ रहा है क्या? ही इज सरप्राइजिंग मी ऑल द टाइम। यहाँ पर सरप्राइजिंग ही एक्शन है, जिसका मतलब है आश्चर्यचकित करना, तो यहाँ पर ये वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट है। दैट मीन्स वर्ब का कंटिन्यूअस एक्शन वाला पार्ट है, क्योंकि एक्शन शो हो रहा है ना? सेंटेंस को एक बार फिर से सारे देखते हैं। स्विमिंग इज माई हॉबी, नो एक्शन, नो क्वालिटी, ओनली नेम ऑफ द एक्टिविटी। इन द सेकेंड ऑल्सो माई हॉबी इज स्विमिंग, द सेम वन। ठीक है, आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, तो क्या होगा? यहाँ पर ये एक्शन का काम हो रहा है स्विमिंग करने का, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये एक्शन है। ठीक है, द बेबी इज क्राइंग, ये भी एक्शन है। क्राइंग बेबी, बेबी हु इज क्राइंग, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्राइंग बेबी, है ना? तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है। दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी, सरप्राइजिंग फॉर मी मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक है। अगेन क्वालिटी बताई जा रही है कोई भी किसी चीज की, वो सरप्राइजिंग है, तो ये एडजेक्टिव है। ही इज सरप्राइजिंग मी ऑल द टाइम, वह मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है हर वक्त, तो यहाँ पर ये एक्शन का काम कर रहा है। एंड वही सेंटेंस फिर से रिपीट है फॉर मी वाला, ही इज सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल द टाइम, वो मेरे लिए हमेशा से सरप्राइजिंग है, इसका मतलब है आश्चर्यजनक है।
तो दो वर्ब, तीन चीजें हो गई। पहला आश्चर्यजनक, दूसरा आश्चर्यचकित करना, है ना। तो एक वर्ब है और दूसरा क्या है, इट्स लाइक दो चीजें, है ना। अच्छा, annoying people always create chaos. Chaos, you understand? लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, हबड़ तबड़, है ना, chaos. Annoying people always create chaos. कई लोग इसे chaos भी कहते हैं। सी एच के साथ ए है तो chaos है वो, जैसे क्लास है ना, जैसे चेस, बिल्कुल उसी तरह से। तो चेस में वो च है, लेकिन यहाँ पर वो क है, तो chaos, ठीक है। अब बताएं यहाँ पे annoying क्या है? Adjective, ma'am. Adjective. क्योंकि यहाँ पे वो लोगों की क्वालिटी बता रहा है, विच इज कॉल्ड अनोइंग। ठीक है, एक और ले लेते हैं। आई एम अनोइंग एट, आई एम अनोइंग एट योर बिहेवियर। ये बताओ क्या होगा? Present participle. It's a verb. इट्स अ वर्ब, गुस्सा Yes, होने वाली बात, present participle. है ना। इट्स लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अनोइंग is not a good habit. अब बताओ, It's a gerund, ma'am. क्योंकि यहाँ पर ये Yes, बात ma'am. कर रहा है, इट्स लाइक Gerund. नाम, Gerund. भाई अनोइंग, मुझे नाम। वो जो गुस्सा है, नाराजगी होना, नाराजगी अच्छी बात नहीं है। अनोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट, है ना। तो व्हाई डू वी यूज इट? We always use gerunds, we always do such gerund formation also, but the thing is that हमें ध्यान रखना है कि जब हम sentences बनाएं तो बस हमें पता होना चाहिए कि हम किस basis पर sentences बना रहे हैं। इसके combinations आपको पता है, I like playing, correct? तो ऐसे नहीं बोलेंगे I want playing, want हमेशा infinitive ही है, need also infinitive, dare also, लेकिन like के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? I like playing। अब इस सेक्शन में playing क्या है, इस सेंटेंस में playing क्या है? Gerund. इट्स अ gerund, क्योंकि like यहाँ पर verb है, करेक्ट। Verb. ये बिल्कुल इक्वल उसी के है। I like to play, मुझे खेलना पसंद है। I like playing, मुझे खेलना पसंद है। Only formation is different. One is participle, नहीं infinitive, the other one is this particular क्या बोलते हैं, gerund formation। तो ये gerund formation इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। So I like playing, है ना। We can also make some long sentences. Long sentence can also be, कई लोग confuse हो जाते हैं, जैसे I like playing, ठीक है, with my friends, especially outdoor games. Also eat food with friends. अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? क्योंकि हम एक लाइन में चले गए, है ना। तो क्या होता है, हम फिर वो भूल जाते हैं हम कौन सी वर्ब लगा रहे थे। अब हमारी पहले वाली वर्ब कौन से फॉर्म में थी, या किस फॉर्म में थी? जेरेंड में थी या पार्टिसिपल में, इन्फिनेटिव में थी, किस में थी? कैन यू टेल मी? Gerund. जेरेंड में। तो हमारा वो जो ईट है वो भी किस में आना चाहिए? Gerund. है ना। Gerund. हमने एक लॉन्ग सेंटेंस बना दिया तो हम वहां गड़बड़ कर देते हैं। वी डू इट, है ना। अभी हमने एक टॉपिक लिया था, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग much more because of
digital India and rub shoulders with the world. ठीक है, अब हम कभी ऐसा बोलेंगे तो सेंटेंस यहाँ पे हमने बनाया. यहाँ पर कई बार ऐसा होता है लॉन्ग सेंटेंसेस की वजह से हम भूल ही जाते हैं कि हमने पहले क्या बनाया था. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, ये यहाँ पर एक्चुअली वर्ब ही है, ये कोई जरन नहीं है ना, ये एडजेक्टिव है. ये इंडिया तरक्की कर रहा है उस वाली बात हो रही है. तो यहाँ पे एंड लगा दिया, तो एंड के बाद भी तो वर्ब तो वही रहेगी ना, क्योंकि उसके लिए कॉमन वर्ब लगी है इज, तो रबिंग ही होना चाहिए. ऐसे कई बार सेंटेंसेस होते हैं वेयर वी गेट इनटू सच लॉन्ग सेंटेंसेस जहां पर हम ये भूल जाते हैं थोड़ा सा. क्लियर? इज इट क्लियर? कल मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगी, कल कुछ मैं आपको जेरेंड के कॉम्बिनेशंस बताऊंगी. इन्फिनेटिव एंड जेरेंड के कुछ कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एंड देन आई विल बी गोइंग विद योर some important active passive voice also, which we use in our regular days, in our day-to-day speaking. ठीक है? Okay, chalo. Till then, you make some more sentences about gerunds and infinitives, participles, verb की ing form. ठीक है? और उसको adjective की तरह भी देखते हैं हम लोग. कल मिलते हैं. Till then, bye. Take care. Good night. Ma'am, one thing. Can you please suggest the best English grammar? Lucent General English. Any other? Because I have already. Renan Martin, but वो English to English वाली ही है. Renan Martin. Simple है but. Renan Martin. Renan Martin. हाँ, WREN. Ren and Martin's English grammar. Renan Martin's English सबसे oldest grammar book है, and online भी मिलती है. Online is also available. Okay, ma'am. Lucent is a lengthy book, बहुत मजेदार है. मैंने खुद उसे कम से कम 10 बार पढ़ा है. 10 बार हर साल पढ़ती हूँ उसी को, because every time we learn some new. Lucent is a jam book. उसमें सारे rules हैं, सारे. Like S. Chand. एस चांद से भी अच्छी बुक है, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है. बहुत. एस चांद आई थिंक साइंस एंड मैथ के लिए होती है ना? यस मैम. हाँ, जस्ट लाइक दैट. साइंस मैथमेटिक्स आई थिंक दो के लिए होती है ना, फिजिक्स वगैरह. Which one I have to buy मैम, हाई स्कूल और फिर क्या, या फिर कंपटीशन एग्जामिनेशन? सी, ग्रामर तो एक ही होती है, उसको उस लेवल का पढ़ लो, यू विल लर्न एवरीथिंग. व्हाट इज योर पर्पस? सी, स्पोकन इंग्लिश के लिए तो हमको डिटेल ग्रामर चाहिए ही नहीं होती. वी डोंट नीड बुक आल्सो. हमें ग्रामर बुक चाहिए होती, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपैटिटिव एग्जाम. सो आई थिंक Lucent इज अ गुड बुक. गो फॉर इट, है ना? ओके मैम. एक अरियंत की भी आती है, अरियंत जनरल इंग्लिश, दैट इज आल्सो गुड. अरियंत जनरल इंग्लिश, उनकी एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश भी आती है. For competitive exams, objective English is better. It has some questions. लेकिन Lucent से अच्छा कंटेंट उसमें भी नहीं है. It has everything. पहले perfect भी बहुत चलती थी, but perfect has many mistakes actually. Perfect English है ना? That has lot of mistakes now. बहुत, और छोटा छोटा पार्ट दिया है उसमें. Lucent has everything. बहुत सारे rules हैं. आप उसका सिंटैक्स पार्ट पढ़ोगे ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला, यू विल फील लाइक माय गॉड, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा. उसमें पता है कम से कम 182 रूल्स हैं सिंटैक्स में, सब बताता है वो, है ना? When I was in 8, I have read Oxford Current English Grammar and KP Thakur for my entrance examination. These are basic things, basic English है ना? लेकिन थोड़ा जब हम competitive level पे आते हैं, it has a different pattern which Lucent, Ariant they give you. Ariant is also good book. It is authorized book for all these exams and all. You can read it. Objective English,
All these things are available. एक एससी शर्मा, आई थिंक अरियंत वो एससी शर्मा की ही है, एससी शर्मा है, मुझे राइटर्स याद नहीं होते हैं। जैसे मुझे हाँ वीके ठाकुर इज अबाउट ल्यूसेंट, बस मुझे ये 2 ही नाम याद है। मैं बहुत सारी बुक पढ़ती हूँ, आई फॉरगॉट द नेम्स और आई डोंट पे अटेंशन टू द नेम्स, लेकिन हाँ जैसे अभी मैं एस चांद में कंफ्यूज हो गई, फिर मैंने कहा नहीं नहीं एस चांद तो आई स्टडीड फिजिक्स इन माय 9th स्टैंडर्ड, 10th कॉलेज में भी देखा था उसमें। सो या चलो, no problem, see you tomorrow. Till then you practice, make more sentences and come tomorrow. Tomorrow we will be having one spontaneous topic first and then this part. ठीक है? Okay. Right, Okay. ma'am. Okay, ma'am. Bye, good day. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Good night. Good night. Night, Good ma'am. night.